نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے کل سورہ آل عمران شروع کی تھی، اور اس کی تمہید کے ساتھ پہلی 9 آیات کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور سب کا نگہبان ہے، جو الحی ہے اور القیوم ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا اور فرقان بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ تو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح سے چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں، جو کہ اصل کتاب ہیں، جو ام الکتاب ہیں، اور بعض اس میں متشابہ آیات ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد یا حقیقی معنی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس رحمت میں سے عطا فرما، اپنے پاس کی خاص رحمت سے عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے کل کے سبق کا خلاصہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اس پوری کائنات کے رازوں کو جاننے والا ہے، جس نے بنی نوع انسان کی صورت
मुसव्वरी उसकी माँ के पेटू में की, वही अल्लाह है जिसने पिछली किताबों को नाजिल किया, और वही अल्लाह है जिसने इस फुरकान को, इस हक और बातिल की को वादे कर देने वाली किताब यानी कुरान मजीद को भी नाजिल किया। फिर इस कुरान मजीद में कुछ आयतें तो ऐसी हैं जो महकम है। दर हकीकत वही आयतें हैं अल्लाह ताला की जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना, जिनके ऊपर भरपूर तरीके से अमल करना, वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है। इसके अलावा कुछ मुतशाबे आयात भी हैं, लेकिन उन मुतशाबे आयात में कुछ मानी और मफहूम तो ऐसे हैं, उनके उनकी तावील करना मुमकिन नहीं इंसान के लिए, क्योंकि उनकी तावील, उनकी असल हकीकत, उनके असल मानी और मफहूम जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। तो लिहाजा मोमिन को चाहिए, जो ईमान वाला है, जो अकल वाला है, उसको चाहिए कि वो उन मुतशाबे आयात के फितने में पड़ने की बजाय, या उन मुतशाबे आयात को की जस्तजू करने के बजाय वो उन महकम आयात की तरफ फोकस करते हुए अपने मामलात को दुरुस्त रखे और अल्लाह ताला के यहाँ तवज्जो रखे। जो महकम आयात को फॉलो करते हैं उनके लिए तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अकल वाले हैं, और उनके लिए फिर यकीनन आखिरत में आसानियां हैं। और फिर वही लोग हैं जो अपने लिए दुनिया में भी दुआएं करते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह से अल्लाह का कौल है, लेकिन फितना बपा करने वाले वो मुतशाबे आयात के पीछे पड़े रहते हैं, ताकि मुख्तलिफ माने और मफहूम से वो अपने मतलब जो है उनको हासिल करने की कोशिश करते रहें। तो ये कल का सबक, उसमें महकम महकम और मुतशाबे आयात जो हैं वो एक अहम मौजू भी, कुछ हिसाब से सेंसिटिव भी, लेकिन एक अहम तरीन मौजू भी, कि हमें चाहिए कि मुतशाबे आयात के पीछे पड़ने की बजाय हम जितना अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है उसके मुताबिक उनको समझें, और उससे ज़्यादा की कोशिश ना की जाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। कल जो मुतशाबे आयात और महकम आयात के बारे में थोड़ा सा तज़किरा हुआ, मुतशाबे आयात का एक तज़किरा हमने ये भी किया था कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे राज हैं जो वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, जैसे जैसे इंसान अपने इल्म को बढ़ाता जा रहा है, या अपने तजर्बात से और ज़्यादा नतीजे अखज़ करके कुछ मालूमात को इकट्ठा करके वो अपने सामने कुछ राजों को खोल रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे राज हों जो आइंदा आने वाले वक्तों में खुल जाएं। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आज हमारे सामने खुले हैं, जिस जो कि आज से चंद सदियों पहले तक या चंद सौ सालों पहले तक जिनके बारे में कोई वहमो गुमान भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन वो कब खुलेंगे, किस अंदाज में खुलेंगे, किस तरह से हमारे ऊपर वाज़ेह होंगे, वो अल्लाह ताला की ही कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक पॉइंट जो है, जो इजाफा करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है, वो ये है कि वो मुतशाबे या वो ऐसी चीज़ें, ऐसे राज जो हमारे ऊपर वक्त के साथ साथ खुलते चले आ रहे हैं, अब उनके बारे में भी हम अपने अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा जो इल्म है, या तो कुछ तजर्बात करके, कुछ तहकीकात करके हम किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, और वो नतीजा जो है वो हमारे सामने एक एक फहम या एक समझ बूझ या एक मुशाहिदा हमारे सामने रखता है कि ये इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा है। और ये नतीजा जो है वो किस तरह से, इससे पहले 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तज़किरा कर दिया। बहुत सारी ऐसी आयत हैं, जैसे कि कल तज़किरा हुआ था ज़मीन और आसमान जो हैं वो तो एक ही थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको फाड़ कर जुदा जुदा कर दिया। या माँ के पेट के अंदर बच्चे जो हैं वो किस तरह से किस किन स्टेजेस से गुजर कर वो परवान चढ़ता है। तो ये सारी बातें जो हैं आज से चंद सौ साल पहले जो है वो एक उनको समझना लामहला था, मुमकिन नहीं नजर आता था कि कोई समझ सके कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज हमारी तहकीक जो है वो हमें बताती है। पॉइंट इजाफा आज के सबक में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि कल को हमारी तहकीक से जो हमारे सामने कुछ मैटर्स खुल गए, जिसकी बुनियाद पर आज हम यानी कि सपोर्ट करें, अगर के कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये कहा, कल को अगर तो वो हमारी तहकीकात जो हैं वो अगले लेवल पर जाकर हमारी
समझ बूझ में कुछ फ़र्क आता है तो वो हमारे दुनियावी मैटर जो है या हमारी तहकीक का नतीजा जो है उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है। अल्लाह ताला ने जो कौल नकल कर दिया कुरान मजीद में, जो हमारे ऊपर हमारे सामने आज जो है, अल्लाह का कौल जो है वो नहीं बदल सकता। बहुत सारी ऐसी मिसालें भी दी जा सकती हैं। इंसान की तख्लीक के बारे में अगर हम कहें तो उसके बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। क़यामत के बपा होने के बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। उसमें से एक नज़रिया जो है कुरान मजीद का, जो मतलब हम हमारे सामने जो वादे करता है वो तो है कि एक बहुत बड़ी हलाकत अंगेजी होने वाली है, बहुत बड़े लेवल पर उखाड़ पिखाड़ होगी इस पूरी रूए ज़मीन पर भी और पूरी कायनात में। कब बहुत सारी तफसील इसकी आएगी। आज की साइंस के ज्यादा जो मजबूत थ्योरीज हैं वो इन आयात को सपोर्ट करती हैं कि एक वक्त आएगा कि मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी होगी, ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि इस पूरी कायनात में। लेकिन उसके बरक्स कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करती, जो अलग से हैं। जिन कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनका ख्याल है कि ये कायनात जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, युगों के वो मजबूत नहीं है। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनका ख्याल है कि ये कायनात जो है वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाएगी। जिस तरह से आग आग जब राख राख में जब आग होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ठंडी हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रहता, इस तरह से हो जाएगा। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। कल को हमारी साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं जिनके ऊपर आज हम ये कहते हैं कि हमारी जो साइंस जो है वो भी कुरान मजीद की आयत की तायीद करती है या उनके मुताबिकत रखती है, कल को हमारी इस थ्योरी को कमज़ोर पड़ जाने का मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद की आयत में कोई कमी खुदा ना खास्ता या कोई इस तरह से मैटर है, बल्कि वो हमारी तहकीक और हमारी कमज़ोरी की वजह से अगर कुछ है तो वो है। वगरना अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में तस्करा कर दिया वो वो अटल है और वो हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो हमेशा अल्लाह ताला जब चाहेगा उसका मुशाहिदा हमारे तजर्बात से और हमारी, हो सकता है हमारी आंखों के सामने वो मैटर जो है वो खोल कर हमारे सामने कर दे। तो अल्लाह ताला की आयत जो है, जो मुतशाबे आयत हैं, वो उसी तरह से अटल हैं, हकीकत के तौर पर रहेंगी। उनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमारी समझ बूझ में अगर कुछ फर्क आता है या ऊंच नीच होती है तो वो हमारी कमजोरी या हमारे अपने इल्म की कमी या दीगर ऐसे मामलात की वजह से हो सकती है। तो ये एक इजाफी नुक्ता था जो कि अहम है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी मुतशाबे आयात जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। जिस किस किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कायनात के राज जो हैं वो छुपा कर रखे हुए हैं, उनमें से कुछ को हमारे ऊपर खोलता है और कुछ जो हैं वो वक्त के साथ साथ खुलेंगे और कुछ जो हैं वो क़यामत के दिन खुलेंगे, कुछ जो हैं जन्नत और जहन्नम की शक्ल में खुलेंगे। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि इन अपने राजों में से जो ऐसे राज ऐसे राज के वाकयात हैं जो हमारे लिए रहमत का बायस हों, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन मामलात में हमें रखे, उन ग्रोहों में हमें शामिल रखे। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं इस इब्तदाई कल के नुक्ते के साथ। आज का हमारा सबक जो है वो आयत नंबर 10 से शुरू होता है। और आयत नंबर 10 और 11 जो है ये भी दर हकीकत जो पिछला मौजू जो चलता आ रहा है उससे मुताबिकत भी रखता है, उससे भी मुताबिकत रख सकता है या उसके साथ भी इसको मिलाया जा सकता है, या आइंदे आने वाले कुछ मामलात जिसमें यहूदियों और ईसाइयों को कुछ वार्निंग जो है वो दी जा रही हैं, या यहूदियों और ईसाइयों, खासकर शुरू शुरू में कुछ आयात में यहूदी और बाद में फिर ईसाई जो है उनका भी तस्करा आएगा। तो यहूदियों और ईसाइयों के बातिल नजरियात जो हैं जिनकी वजह से वो जिद और अनाद जो है वो उनके अंदर मौजूद है, और वो इस इस्लाम को या इस दीन को या नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, तकजीब करते हैं, तो उनके साथ भी ये कनेक्ट हो सकती हैं। तब तमहीद के तौर पर या इब्तदाई उनकी उनकी उस मौजू के ऊपर आने से पहले उनकी इब्तदाइया के तौर पर भी। तो बहरहाल आयत नंबर 10 और 11 जो है वो मौजू के एतबार से आपस में मिलती जुलती हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन सब ने कुफर किया, जिन सब ने इनकार किया। अब ये इनकार जो है जैसा कि तज़किरा हुआ पिछली आयत से मुताबिकत या पिछली आयत से कनेक्ट करने से, तो जिसने महकम आयत को छोड़ दिया,
جس نے متشابہ آیات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور گمراہی اپنے لیے بھی پالی اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کے راستے کھولے، تو یہ وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، یا اللہ کی ہدایات کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے سرے سے اس اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، انہوں نے بالکل ہی انکار کیا۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، نہ ہی ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو بچا سکیں گے، من اللہ شیئن، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اللہ کے عذاب سے ان کے مال اور ان کے اموال جو ہیں وہ ان کو کچھ نفع دے کر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، اللہ کی سختی سے ان کو محفوظ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ سارے میٹر جو ہیں وہ دنیا کے ہیں، اور دنیا کے اوپر انہوں نے اگر ان کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، تو یہ دنیا کے مال جو ہیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو، لیکن اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یقیناً وہی لوگ ایندھن ہے آگ کا لوگ جو ہیں وہ خود تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کی جہنم کی حدت یا جہنم کی آگ کے علاوہ ان کے اپنی جو آگ ہے، ان کے اپنا جو حدت اور مطلب حرارت ہے، وہ خود اور ان کے دوسرے ساتھی لوگ جو ہیں ان کے جلنے کی وجہ سے اس جہنم کی آگ کی جو شدت ہے اس میں اور زیادہ اضافے کے باعث ہوں گے۔ تو وہ اولئک ہم وقود النار، تو وہی لوگ ہیں ایندھن آگ کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ کدا ابھی آل فرعون، اور ان کی حالت ایسی ہوگی یا ان کا یہ انجام جو ہے اسی طرح سے ہوگا، یہ انجام دنیا میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ کچھ ذلت اور رسوائی الگ سے ایک ٹاپک ہے، کبھی بات کریں گے اس کے اوپر، پہلے بات ہو چکی کہ بہت ساری دنیا کے اوپر بھی ذلت اور رسوائی ایسی ہو سکتی ہے، یا اللہ کی عذاب یا اللہ کی سزا کا ایک طریقے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں انسان کو کچھ شعور نہ ہو کہ یہ عذاب کے طور پر ان کے اوپر، آزمائش کے طور پر ان کے اوپر یہ سارا مسلط کیا گیا، لیکن آخرت میں تو پھر واضح دو ٹوک الفاظ میں، دو ٹوک انداز میں ان کے ساتھ ایسے میٹر ہوں گے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ان کو صحیح معنوں میں سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا میں کچھ سزائیں ہو سکتا ہے انسان کو دنیا کی آسودگی کا باعث لگتی ہوں، لیکن آخرت میں پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو ان کا حال جو ہے وہ ایسا ہوگا، کدا ابھی آل فرعون، جس جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، فرعون اور اس کے لشکروں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس جیسا حال ہوگا آج جس نے اللہ کی آیات کا یعنی قرآن مجید کا انکار کیا، یا سرے سے انکار کر دیا، یا ان کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد ان کو پسے پش ڈال دیا۔ نہ صرف ان کا حال جو ہے وہ فرعون جیسا ہوگا، فرعون اور اس کے لشکروں جیسا، بلکہ والذین من قبلہم، بلکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بھی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، عاد اور سمود اور دیگر کچھ قومیں جو ہیں جن کا تذکرہ آگے جا کر تفصیل سے ہمیں ملے گا بعد میں بھی، کذبوا بآیاتنا، اور ان کی یہ حالت جو ہے دنیا میں ان کے اوپر عذاب آئے اور آخرت میں تو ان کے اوپر سزا اور وہ ہے ہی۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو، وہ اللہ کی آیات کو جٹلایا ان قوموں نے، ان پھر گروہوں نے، تو جس کے نتیجے میں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو گناہوں کے سبب، اس انداز سے جٹلایا اور اس انداز سے انہوں نے اس شدت کے ساتھ اپنے نبی کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، تکذیب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب دنیا میں ہی پکڑ لیا، دنیا میں ہی ان کو عبرتناک سزا جو دی، جو کہ آج ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، اور پھر آخرت میں ان کی سزا جو ہے وہ تو طے شدہ ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو وہ سخت ترین پکڑ ہوگی، اس سے کوئی نجات نہیں دلا سکے گا، نہ کوئی نہ دنیا کو کوئی مال اور نہ ہی کوئی اولاد، اور پھر وہ دنیا میں ان کی رسوائی جو ہوگی آخرت میں تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ کل الذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن سب نے کفر کیا۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 12 اور 13، آیت نمبر 12 13 جو ہے وہ، یعنی کہ اب اس سے اگلے لیول پہ اگر ہم چلے جائیں، پچھلی آیات میں ہم دیکھیں، اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ واضح طور پر وارننگ دے دی کہ اگر تم نے
इस कुरान मजीद का इनकार किया और उसकी तकजीब करते रहे, तो तुम्हारे साथ अल्लाह ताला फिरौन आले फिरौन या उससे पहली की जो कौमें हैं उनके ऐसा हाल करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब उसी पैराए में अगर हम आगे चलें तो आयत नंबर 12 और 13 जो है, वो दर हकीकत जंगे बदर जो है, जो सबसे पहला मार्का हुआ था मुसलमानों का और मुशरिकों का, उसके उसके बाद की आयात जो हैं वो महसूस होती हैं, या उसके बाद के मामलात जो हैं उसको, उसकी बुनियाद पर या उसके पसे मंजर में हमें ये आयात जो है 12 और 13 नजर आती हैं। जंग बदर क्या है, बड़ी तफसील के साथ कुछ ऐसे मार्के जो हैं वो आएंगे हमारे पास आगे। जंग बहुत बदर के बारे में भी, जंग उहद के बारे में भी, खंदक के बारे में भी, या इस तरह से और भी मतलब मौके के ऊपर। तो यहाँ पर जंग बदर का तज़किरा हो रहा है। तो आगे जाकर जंग बदर का हालात जो हैं इट्स बड़ी तफसील से आएंगे, लेकिन यहाँ पर बस तमहीदी तौर पर कि जंग बदर जो है वो कब हुई और उनके हालात और वाकयात क्या थे, ताकि हम इन आयात की जो सही समझ है उसको उसकी बुनियाद जो है वो हम बना सकें। तो हमें पता है कि जब हजरत मदीना हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो शुरू में तो मुसलमान जो हैं वो एक हिसाब से लुटे पुटे वहां पर पहुंचे हैं, ना उनके रहने ठहने का ठिकाना, ना उनका कोई मुआश मुआश है, ना ही उनके दीगर मामलात में है। इंतहाई गुर्बत और कसम परसी की हालत में वहां पर पहुंचे हैं। शुरू में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कुछ ऐसे इकदाम किए मसावात का, अंसार ने उनको कैसे फिर अपने गले से लगाया और अपने घरों में उनको जगह दी और अपने कारोबार में भी उनको मतलब शराकत दारी की। वो मसावात का एक आला मिसाल जो है वो कैसे कायम हुई अहले मदीना ने, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में जाकर पहले मुसलमानों की वहां पर सेटलमेंट हुई, फिर इर्द गिर्द के जो कबीले हैं यहूदी और ईसाई या दीगर जो कबाइल हैं, चाहे वो मदीना के अंदर हों या मदीना के इर्द गिर्द की आबादियों में हैं, उनके साथ कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हुए, कुछ एमओयूज वगैरह उनके साथ तय पा गए। तो पहले 6 महीने 8 महीने में कुछ इस तरह से मामलात चलते रहे, और उसके बाद फिर मुसलमान जो हैं वो अपने दीन की तबलीग या इसके ऊपर भी फिर वो मतलब सीधे हो गए। तो अब जब 1 डेढ़ साल गुजर चुका, दूसरी सने हिजरी जब पहुंच गई, तो अब वहां पर जो ना सिर्फ मदीना के अंदर यहूदी और ईसाई मौजूद है वो, बल्कि इर्द गिर्द के मुशरकीन, ये बतौर खास मक्का के जो मुशरकीन थे, उनको अब ये अंदाजा होना शुरू हो गया कि मुसलमान तो अपनी जगह पर अब मतलब बैठ गए हैं, और ये तो आहिस्ता आहिस्ता मजबूती पकड़ रहे हैं, और ये तो आहिस्ता आहिस्ता फलना फूलना शुरू हो रहे हैं, और उस अंदाज से लगता है कि ये बड़े कल को मतलब खुलकर सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस तहरीक को शुरू में ही कुचल के दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, तफसील आएगी बाद में। बाहर दूसरी सने हिजरी, हिजरत के दूसरे साल ही तकरीबन, हिजरत के 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल बाद मुशरिकीन मक्का जो है उन्होंने मतलब एक कहने के हल्ला बोल दिया। वो 1000 का लश्कर, 1000 जंगजुओं का लश्कर लेकर वो मतलब जंग के लिए आगे बदर के मुकाम पर। मुसलमानों को जब पता चला तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को भी, और मुसलमान भी तैयार हो गए। मुसलमान अपनी अफरादी कुव्वत के एतबार से भी कमज़ोर थे, अपने माली वसाइल के एतबार से भी कमज़ोर थे। अभी उनमें वो जंगी सलाहियतें, जंग किस तरह से लड़ी जाती है उसकी तरबियत जो है वो भी उनके पास नहीं है। और फिर वो तादाद में इंतहाई कम है, अभी वो खुद कमज़ोर हैं। ये सारे मैटर में इसके बावजूद वो फिर जितना उनके पास हल्के फुल्के औजार रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम किया और वो निकल खड़े हुए। जो मुशरिक थे वो 1000 का लश्कर लेकर आए, जिसके मुकाबले में मुसलमान जो है वो सिर्फ 313, उनका 1/3 हिस्सा तादाद में बनता है। 313 मुसलमान जो है वो भी बदर के मुकाम पर पहुंच गए उनका मुकाबला करने के लिए मुशरकीन का। अब मुशरकीन जो हैं, मुशरकीन मक्का या कुरैश या देर कबीले जो हैं, कुफार जो हैं, काफिर जो हैं, वो तो पहले बदर के मुकाम पर पहुंचे, और बदर पहुंचकर उन्होंने एक सख्त जगह, बदर जो है मुकाम जो है वो मिली जुली जगह है, वहां पर कुछ रेतीली जगह भी है, रेत वाली जगह, और कुछ जो है वो सख्त पत्थर या चट्टानों वाली या सख्त मजबूत जमीन भी है। तो
कुरैश के जो कबीले वो लश्कर आया, तो उन्होंने पहले पहुंच कर वहां पर जो मजबूत जमीन थी उसके ऊपर अपना पड़ाव डाल लिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बाद में जब मुसलमान पहुंचे तो उनके लिए अब जो जगह थी जिसके ऊपर उनको पड़ाव करना था, वो एक रेतली जगह थी, रेत वाली जगह, जहां पर चलना फिरना या कदम रखना जो है वो भी दुश्वार होता है। बाहर इस तरह से दोनों लश्कर जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो बराजमान हो गए। एक तरफ तो मुसलमानों का लश्कर है, जो कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की मतलब अल्लाह की ही तारीफ जो है वो करते जा रहे हैं, और सिर्फ अल्लाह को ही अपनी मदद के लिए दुआओं में मसरूफ हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अलग से खैमा लगाया हुआ उन्होंने भी, जिसमें वो रात भर गिरवाजारी करते रहे अल्लाह के सामने, अपने मतलब आंसू जो है उनके बहते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमरे में ये मंजर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत की देखी, तो उन्होंने कहा कि आप बस कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने में तो इंतहा कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बाद फरमाया कि ए अल्लाह, अगर तूने मुट्ठी भर जमात को आज खत्म कर दिया तो क़यामत दिन के दिन तेरा कोई परस्तार बाकी ना रहेगा। तो ये दुआएं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांग रहे हैं, और वहाँ पर ये बुखारी की कुछ रिवायात है, ये तफसील जो है वो मिलती है। ये दुआएं मांग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने खैमे से बाहर निकले थे, उनके चेहरे पर एक इत्मीनान के आसार जो है वो नुमायां थे, नजर आ रहे थे। जबकि उसके बरक्स वो लश्कर जो कि मक्का से आया है लड़ने के लिए अपने सारे साथियों के साथ, वो जो है वो अपने साथ वो भरपूर जंगी सामान भी लेकर आए हैं, असला वगैरह, उस वक्त की तलवारें और ढालें वगैरह और नेज़े वगैरह, वो सारा कुछ उनके पास है। फिर उनके मतलब उनकी क़याम के दौरान में शराब और कबाब की और सुरूर और रक्स की महफिलें जो है वो बपा हैं। वो उनका एक तरीका था, उनके जो रवाज थे कि अपने साथ वो नाचने गाने वाले भी लेकर आते, बैंड मतलब ये म्यूजिक वगैरह जो है ढोल ढमक्का, वो भी सारा कुछ चल रहा है। तो किस तरह से एक बिल्कुल एक उल्ट माहौल जो है वो वहां पर नजर आता है कि मुसलमान जो है वो किस तरह से अल्लाह के सामने अपना सर झुकाए खड़े हैं और अल्लाह से अपनी मदद जो है वो तलब कर रहे हैं, और खासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि उसके बरक्स मुशरिकीन जो है वो किस तरह से वहां पर मतलब अपने सुरूर और गुरूर जो है उसमें वो मतलब मशहूर हैं, उसमें मगन है, और उसमें वो खुबे हुए हैं या बह बह रहे हैं। इसी दौरान अब मैदान बदर जो सजा और वहां पर जो मार्का शुरू हुआ, तो उस मार्के में फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआएं कबूल करते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो है वो कबूल करते हुए, मुसलमानों की बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों की तायीद की। इनमें से कुछ हिस्सा जो है आज का ये जो तमहीद हम बात रहे हैं, कुछ हिस्सा जो है वो इन आयात में आएगा। बाकी बाद में जाकर जब हमारे सामने आयात आएंगी तो हमारी याद दहानी के लिए ये हमें इंशाल्लाह ये तमहीद जो है वो हमारी मदद करेगी। बहरहाल जब मैदान बदर सजा और फिर दोनों लश्कर आमने सामने आए, तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मुख्तलिफ अंदाज में तायीद की। एक तो तायीद या एक तो मुसलमानों की मदद अल्लाह ताला ने इस तरह की कि क्योंकि वो मुसलमान रेतली जगह पर थे जहाँ पर पाँव जमाना भी मुश्किल था या चलना फिरना, जबकि मुशरिक जो है वो एक मजबूत जमीन पर थे, तो अल्लाह ताला ने हवा चला दी, और हवा जो है वो इस एंगल से चली कि वो रेत जो है वो बड़ी मिकदार में उड़कर वो उनकी तरफ मुशरिकीन की तरफ गई, जिसकी वजह से उनकी अपनी आंखें या उनके अपने जो हालत है वो भी खराब हुई। और फिर वो उस जो चटियल जगह जो थी, सख्त जगह जो थी, उसके ऊपर भी वो बैठ गई, वो सारी रेत जो है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वहां पर बारिश नाजल फरमा दी। बारिश नाजल करने से, बारिश आने से फिर वो जो रेत वाली जमीन जो है वो निस्बतन थोड़ा सा तर होने की वजह से थोड़ी सी मजबूत होगी कि उसके ऊपर चलना फिरना आसान हो गया। जबकि उसके बरक्स मुशरकीन की जगह क्यों ऑलरेडी क्योंकि वो सख्त जगह थी, तो उसके ऊपर जब बारिश पड़ी तो वहां पर जैसे फिसलन की सिचुएशन हो गई कि वहां पर कदम जमाना जो है वो आसान ना रहा। और इस तरह से फिर मुसलमानों की तरतीब जो है, उनके 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 उनकी तरतीब, जब जंग होती है तो एक खास तरतीब से लश्कर जो है उनको खड़ा किया जाता है, सफ़े उनकी बांधी जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की
यकीनन मदद से इस अंदाज में मुसलमानों की तरतीब दिया उन मुसलमानों को वहां पर खड़ा करके, या जो भी उनकी पोजीशन वगैरह दी, तो ऐसा उनको काफिरों के ऊपर उनकी धाक बनी कि काफिरों को देखने में ऐसे लगा कि जैसे मुसलमान उनकी तादाद से, यानी काफिरों की तादाद से दुगने हैं। काफिर जो है वो 1,000 आए थे वहां पर, काफिरों का लश्कर, और मुसलमानों का लश्कर जो है 313 है। तो वो काफिरों को मुसलमानों का लश्कर ऐसे ही लगे कि जैसे कि वो उनकी तादाद का दुगना है, जैसे कि वो मुसलमान की तादाद जो है वो 2,000 है। 313 की बजाय मुसलमानों की तादाद 2,000 जो है वो महसूस हुई काफिरों को। जबकि उसके बरक्स जो मुसलमान है, उनको भी अपनी से दुगनी तादाद जो है वो मुशरिकीन की वहां पर फील हुई। जो कि 313 का डबल कर दें तो 626, यानी 625, 650 बनते हैं। कि बजाय इसके कि वो अपने दुश्मन को 3 गुना महसूस करते, 3 गुना के बजाय 2 गुना, यानी कि जितना एक असर होता है वो, उनका रोब जो है वो और कम हो गया मुसलमानों की मतलब नज़र में भी, या मुसलमानों के जो दिल हैं उनमें भी। तो इस तरह से भी फिर मदद की अल्लाह ताला ने। फिर जब जंग शुरू हुई तो उसमें फिर फरिश्ते भी मुसलमानों की मदद के लिए भेजे अल्लाह ताला ने। बहरहाल इस तरह से फिर वो वहां पर मार्का हुआ, और सिर्फ 313 जो मुसलमान हैं उन्होंने वो 1,000 का जो काफिला आया था अपने से 3 गुना बड़ा, उसका तो वहां पर बुरकस निकाल दिया। और वहां पर 70 से ज्यादा कुरैश के सरदार जो है वो मारे गए। और कुरैश का कोई घराना ऐसा नहीं था जिनका कोई ना कोई वहां पर जहन्नम वासल ना हुआ हो। इस कदर वो बड़े पैमाने पर उनको बुरकस निकाला, और अल्लाह ताला ने मदद की उनकी। अब जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों को अब थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, वो थोड़ा सा मजबूत हुए अपने एसाब में और अपने मकसद में। उनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि हम मतलब कर सकते हैं मुकाबला। तो अब इर्द गिर्द जो है वो भी फैल गया सारा सिचुएशन के, मतलब किस तरह से मुसलमानों ने मुकाबला करके उन क्रैश को या उन मुशरिकों को किस तरह से उनका बुरकस निकाल दिया है। अब उसकी वजह से एक तो बेचैनी जो है वो बढ़ भी गई मुशरकीन मक्का में भी, और इर्द गिर्द के कबाइल जो हैं उनमें भी बेचैनी थोड़ी सी बढ़ गई कि ये मुसलमान आज इतनी कलील तादाद में इस तरह से हो गए हैं, तो कल तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। तो इस तरह की एक बेचैनी जो है उसने हालात को मजीद सख्त कर दिया, जो कि आगे जब हम चलेंगे अहजाब की तरफ, सॉरी दूसरा जो मार्का है ओहद का, उसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसकी तफसील जो है वो हमारे पास आ जाएगी बाद में आने वाली आयत में भी। तो बहरहाल हालात जो हैं वो और ज्यादा, मतलब दुश्मनी जो है वो और ज्यादा अभी बढ़ गई। बहरहाल मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक फतह नसीब की। अब जब ये फतह नसीब हुई मुसलमानों को, तो इसके बाद फिर अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो कि रईसुल मुनाफिकीन के नाम से जाना जाता है, मतलब उसकी उसकी जो सिफ्त रईसुल मुनाफिकीन के एतबार से, इसके बारे में भी बहुत सारे तज़किरे आगे आएंगे। उसने फिर अपने साथियों से समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इससे पहले तक उसने इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन बदर में जब मुसलमानों को फतह अता की अल्लाह ताला ने, तो उससे मुतासर होकर अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है उसने भी अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले जो यहूदी कबीला बनु कैनका है, उसको मुखातब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए यहूदियों, या ए यहूद, इस्लाम कबूल कर लो, तो इसी में आफियत है, या इसी में तुम आफियत में रहोगे, वरना तुम्हारा भी हशर वही होगा जो मुशरिकीन मक्का का हुआ है। लेकिन वो यहूदी कबीला जो है बनु कैनका, बजाय इसके कि वो नसीहत कबूल करता, वो शेख ही मारने में आ गए और कहने लगे कि मक्का के काफिर तो जाहिल और फनून जंग से नाआशना थे, उनको तो जंग लड़नी नहीं आती थी, कि वो पिट गए और हार गए तुमसे। तुम्हारा हमसे मुकाबला जब आएगा तो फिर समझ लग जाएगी कि मैं कि यहूदी क्या होते हैं, या यहूदियों की ताकत क्या है। तो बहरहाल उन्होंने भी अपने माली वसाइल और अपने दीगर जो दुनियावी उनके जो जो उनके ऊपर उस वक्त आसाइशें थी, उनकी बुनियाद पर उन्होंने भी बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते, उन्होंने उल्टा अपना गुरूर जो है वो करते हुए, जो साफ इनकार, चिट्टा इनकार जिसे कहते हैं, वो कर दिया। तो फिर उस पर फिर इन आयत में हमें अल्लाह ताला की तरफ से पेशीन गोई भी मिलती है कि इनको कह दीजिए कि तुम मगलूब हो जाओगे, और तुम्हारा हशर जो है दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी तुम
इकट्ठे हो गए जब क़यामत के दिन, तो वहां भी तुम्हारे लिए अजाब होगा। और दुनिया में तो उनकी मगलूबियत, या दुनिया में तो उनका मगलूब होना, वो साबित हो चुका कि उस वक्त बनु कैनका जिसने सबसे पहले इनकार किया था, उनको भी फिर एक वक्त आया कि कबीले से मतलब निकाल दिया गया मदीना से, और उनको फिर खैबर में जाकर पनाह लेनी पड़ी। दूसरा जो कबीला था एक, बनु नज़ीर जो है, वो उनको भी फिर बाद में जिला वतन कर दिया गया, और उनको भी जाकर खैबर में पनाह लेना पड़ी। और तीसरा जो बनु कुरैज़ा एक कबीला था मदीना में यहूदियों का, तो उनको उनके साथ भी जब मैटर हुए, उन्होंने भी जब इस तरह से मतलब मुसलमानों के खिलाफ अपने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की, तो उनके खिलाफ तो फिर बाकायदा कत्ल जो है उनको किया गया, और उनको उनको इस तरह से लश्कर कशी उनके ऊपर की गई, और उनको फिर वो भी मगलूब हुए। और ये जो बनु कैनका और बनु नज़ीर जो हैं, जो कि मदीना से निकलकर जो खैबर में जाकर आबाद हुए, तो बाद में खैबर को जब फतह किया, तो वहां पर भी शुरू में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो वो फिर जब मगलूब हुए, तो वहां पर मज़ारे की हैसियत से वहां पर, यानी कि उन्होंने अपना जो भी देन था उसका, रियासत को देना होता है, वो उन्होंने देकर कबूल कर मंजूर कर लिया कि हमें रहने दें। लेकिन बाद में फिर हजरत उमर रज़ी तआला अन्हु के दौर में फिर उनको उनकी फितना अंगेजियों की वजह से खैबर से भी बेदखल कर दिया गया, और वहां से निकाल दिया गया। तो बहरहाल दुनिया में तो उनके वो मगलूब हुए शुरू के दौर में ही, और नबी के अल्लाह मुसलमान जो हैं वो गालिब आ गए उन पर। और क़यामत के दिन तो फिर उनके ऊपर किस तरह से हालात होंगे, इनका अंदाजा तो इस दुनिया की जिंदगी से नहीं किया जा सकता। तो बाहर ये कुछ तमहीद है। इसमें हमने आज बदर जो है उसका उसका वाकया कैसे हुआ, उसके हालात और वाकयात क्या थे, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, वो भी हमने एक हल्के फुल्के अंदाज में समझने की कोशिश की। इसी तमहीद के साथ हम दो आयात जो हैं उनको समझते हैं, और फिर मजीद तफसील जब आगे आएगी तो उसमें हमारी ये तमहीद जो है वो इंशाल्लाह हमारी याद दहानी जब होगी तो हमारे काम आएगी। तो वापस आते हैं अपने सबक की तरफ, आयत नंबर 12। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल लिल्लज़ीना कफरू, कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कह दीजिए उन लोगों को जिन सब ने कुफर किया है, ये काफिर लोग जो हैं यानी ईसाई और यहूदी जो हैं, उनको कह दीजिए, सतुगलबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, सतुगलबूना कि तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे, अनकरीब तुम्हारे ऊपर मुसलमान जो हैं वो गालिब आ जाएंगे। व तुहशरूना इला जहन्नम, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुमको इकट्ठा किया जाएगा जहन्नम की तरफ। दुनिया की जिंदगी में भी तुम मगलूब हो जाओगे, ए काफिरो, यानी ये यहूदी और ईसाइयों, आगाह रहो, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया और अपने इस दीन को कबूल ना किया, जिसको तुम्हारे दीन जो है यहूदियत और ईसाइयत जो है वो भी उनको सपोर्ट करती है, और पहले से उन्होंने पेशगोइयां कर रखी हैं, अगर तुमने इस दीन को कबूल ना किया तो दुनिया में भी मुसलमान तुम्हारे ऊपर गलबा पाएंगे, और फिर आखिरत में तो तुम्हें जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा, जहां पर से तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। वार्निंग उनको दे जारी कर दी। लेकिन जैसा कि हमने इस इब्तदाइया में देखा, तमहीद में, कि इस वार्निंग को या इस बुलावे को उन्होंने लाइटली लिया, और उसका सिंपली इनकार कर दिया कि हम हमारे साथ जब तुम्हारा मुकाबला होगा तो फिर देखना कि हम कैसा करेंगे तुम्हारे साथ। वह भी सलमिहाद, और ये जहन्नम जो है यकीनन वो एक बहुत बुरा ठिकाना है, एक बहुत बुरी जगह है रहने की। कद कान लकुम आयतुन, यकीनन है तुम्हारे लिए निशानी, इबरत, फी आतईन, उन दो ग्रोहों में। ये दो ग्रोह जो देखो, ये गजवा बदर के बाद की आयात हैं। तो गजवा बदर का अब यहाँ पर हवाला देकर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा किया उन यहूदी और ईसाइयों की तरफ, कि ये जो दो ग्रोह जो अभी कुछ ही अरसा पहले बदर के मुकाम पर मिले थे, इन दोनों ग्रोहों में तुम्हारे लिए इबरत की एक निशानी है, या तुम्हारे लिए इबरत हासिल करने की एक कहानी है। अल तकता, जो दोनों आपस में मुकाबले में उतरे, दो ग्रोह जो आपस में मुकाबले में उतरे, इनमें तुम्हारे लिए एक निशानी है। फियातुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक ग्रोह तो उनमें वो था जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, जो उनके मुसलमानों का ग्रोह, जो कि अल्लाह के रास्ते में अपना 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 जो हर तरह का जो माल और इवन जान जो है वो भी हथेली कर रख कर वहां पर हाजिर हुआ।
بدر میں، و اخرى کافرتن، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا، جو کہ شراب اور کباب کے محفلوں میں وہاں پر مگن تھا۔ یراونہم مثلیہم، وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو ایک سے اپنے سے دو مثل یا دو گنا، رأی العین، آنکھ سے دیکھنے میں، آنکھ سے یعنی وہ جو دشمن جو ہے، مشرک جو ہے، ان کو، تو یہ کافر جو ہیں یہاں پر مشرک ہیں، یہ مشرک جو ہیں ان کو تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے سے دگنا نظر آ رہے تھے۔ یہاں پر صرف مسلمان کا تذکرہ کیا، کچھ تفسیریں جو ہیں اس میں اس آیت کے اس حصے کا مطلب لیا گیا ہے کہ صرف جو مشرک ہیں ان کو مسلمان اپنی تعداد سے زیادہ یعنی 2000 کی تعداد میں نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ تفسیروں میں دونوں کے لیے ہیں کہ دونوں کو اپنا جو مخالف گروہ ہے اپنی تعداد کا دگنا نظر آ رہا تھا، یعنی مشرقین کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو مشرقین جو ہیں وہ 600، سوا 600، 650 نظر آ رہے تھے۔ تو یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو ان کی آنکھ جو ہے جب وہ دیکھتے تھے ان کو، تو ان کو اپنا مخالف گروہ جو ہے وہ اپنے سے دگنا نظر آ رہا تھا تعداد میں۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے۔ اللہ نے پھر اللہ کے یہ اصول ہے کہ جو اللہ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، یا نصرت ان کو عطا فرماتا ہے۔ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، اپنی مدد جو ہے وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی۔ ان فی ذالک، جس طرح سے غزوہ بدر میں ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے تائید ان کو ملی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے، وہ لوگ جو، ابصار کا مطلب آنکھ والے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا مطلب جو ہے بصیرت بھی لیا جاتا ہے، جو غور و فکر کر کے، جو سمجھ بوجھ کر کے، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، یا جس چیزوں کو اینالائز کر کے، جو اس کے نتیجے سے اخذ کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ بصیرت والے، اہل بصیرت کہہ لیں۔ تو جو بصیرت رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اس واقعے میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے کہ دیکھو، مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی تعداد میں بھی وہ بہت کم ہے، اس کے باوجود اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اگر وہ اس کے باوجود وہاں سے کامیاب لوٹے ہیں، تو دیکھو کوئی نہ کوئی تو ان کے پیچھے ہے کہ جو ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ زین للناس، مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، حب الشہوات، نفسانی خواہشات جو ہے اس کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے۔ یہ اب اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ بھی ہے مکسڈ ہے، ایک اوپن عام آیت کی صورت میں ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یا یہودیوں اور عیسائیوں کا دنیا کے مال اور دنیا کی دولت محبت جو ہے اس کی وجہ سے ضد اور عناد جو ہے، یا یہودیوں اور عیسائیوں، یا اس طرح کے جتنے مذاہب ہیں، ان کی، ان کا جو مقصد ہے، یا ان کا جو انکار کی ایک وجہ جو ہے، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مال یا اپنے دنیا کے جو ان کے جو اسباب ہیں ان کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے، یا ان کی محبت میں وہ گرفتار ہیں۔ تو لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی محبت سے مزین کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو۔ اب حب الشہوات جو ہے یہ ایک اہم ٹاپک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت انسان کے نفس میں دنیا کی محبت فطری طور پر رکھی ہے، یہ فطرت میں ہے انسان کو کہ وہ دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی خواہش کرتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کی اس میں ایک تمنا ہوتی ہے جو کہ ایک فطرت ہے۔ اور یہی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے حب الشہوات جو ہے جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پکارا، یہ در حقیقت یہی ایک آزمائش ہے جو انسان کے اوپر اس دنیا میں سب سے بڑی ایک سوچنے سمجھنے کی چیز ہے۔ تو در حقیقت اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ان فطرتی محبتوں کو، ان فطری محبتوں کو کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کے اندر ان کو رکھتا ہے، یا ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے ان حب و شہوات کو، اور پھر اللہ کے حدوں کو پامال کرتے ہوئے ہر طرح کی
جو گناہ ہے یا ہر طرح کے جو مطلب اس طرح کے معاملات ہیں ان میں سے پھر وہ پڑ جاتا ہے، کس قدر وہ اپنے آپ کو ان فطری محبتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہوئے وہ اپنے دائرے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے دائرے میں، یا ان کو کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ جو کچھ دل میں آئے کرتے رہو۔ کھلی چھوٹ جب ملے گی تو بہت سارے فتنے بپا ہوں گے، بہت سارے فساد ہوں گے، اور بہت سارے ایسے میٹرز ہوں گے جب انسان جو ہے وہ ان کو بقدر ضرورت ان کو حاصل کرے گا تو یقیناً اس میں انسان کا فائدہ بھی ہے۔ بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، کھانے پینے کی مثال، کہ کھانے کی ایک طلب جو ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر دینا جو ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے پھر صحت کے مسائل جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ دولت جو ہے انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنا معاش یا مطلب روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں ان کو آسانیاں ہو، لیکن حد سے زیادہ اس کی محبت جو ہے وہ اس کو لالچی حرص میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اور زیادہ بگاڑ آتے ہیں، پھر وہ کرپشن اور لوٹ مار اور یہ وہ اس طرح سے، اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور پھر اس میں غرور اور تکبر آ جانا۔ تو جس نے ان حدوں کو کراس کر دیا دولت کے ساتھ محبت میں، اس نے بہت سارے فتنوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تو گویا انسانوں کی کثرت جو ہے وہ پھر اس میٹر میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فیل ہو چکی ہے، کہ حب الشہوات میں وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اپنی ان خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر اگر یہ فطری محبت یا فطری جو یہ تقاضے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ انسان کے دل میں یا انسان کی فطرت میں نہ رکھتا تو آج ہم دیکھتے کہ اس طرح سے یہ دنیا کا ماحول نہ ہوتا۔ اگر عورت اور مرد کے درمیان ایک کشش اور ایک محبت نہ ہوتی تو نسل انسانی جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتی، کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بیزار ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں، تو نسل انسانی کس طرح سے آگے بڑھتی؟ مال سے محبت جو ہے یا مال کی ضرورت جو ہے وہی ایک فطری تقاضا ہے کہ اس سے ذریعے سے وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے۔ تو اب جس نے یہاں تک محدود رکھا اس نے تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، لیکن جس نے حدوں کو کراس کر دیا اس نے گویا کہ بہت سارے فتنوں کو جنم دے دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ حب الشہوات جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک بھی ہے، اور در حقیقت اسی میں انسان کی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ تو کون ہے جو ان خواہشات کی محبت کے اوپر قابو پاتا ہے، اور کون ہے جو ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، کھلے گھوڑے کی طرح کہ جدھر مرضی بھاگے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ حب شہوات جو ہے یہ ایک اہم ٹاپک ہے آپ کے سبق کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ فطری جو محبتیں ہیں، خواہشات کی محبتیں، وہ انسان کے دل میں ڈال دی ہیں یا انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اور ان فطری جو خواہشات ہیں ان میں سے سب سے پہلی نمبر پر جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی وہ ہے من النساء، عورتوں سے۔ تو سب سے پہلی، سب سے بڑی جو ہے وہ فطری محبت یا حب شہوات میں سے آتی ہے، وہ عورتوں سے عورتوں سے متعلقہ ہے، نساء۔ اب یہاں پر یہ کلیریفیکیشن جو ہے، ہلکا سا پوائنٹ جو ہے وہ اضافہ کہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب یہ نساء کا تذکرہ ہوا تو عورتیں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ ان کے اوپر شہوت یا ان کے اوپر جو یہ جنسی غلبہ جو ہے ان کے اوپر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے عورتوں کی نسبت، اور وہ زیادہ اس راستے میں کوشش کرتے ہیں یا زیادہ اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے پھر عورتوں کا یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب گمراہی کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عورتیں اور مرد دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں میں بھی اب یہ فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ مرد جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرنے والی عورت ہے مختلف انداز سے، سوشل میڈیا اور یہ وہ اس کے اوپر زیادہ بات کیا کریں، ہم سب کو پتہ ہے اب۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ میٹر جو ہے وہ چلتے ہیں، دونوں طرف سے یہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، یا یہ آج کا قصہ نہیں، یہ تو شروع سے اس طرح سے آ رہا ہے۔ جیسے ابھی تذکرہ ہوا بدر کے میدان میں جو مشرک اپنے ساتھ لے کر آئے، تو جہاں پر وہ دوسرے وسائل یا دوسرے معاملات میں ترے ہیں، وہیں پر ناچنے گانے والیاں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں، جو کہ ان لشکروں کو رات کو شباب اور کباب کی محفلوں میں پھر ان کو مسحور کر کے ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ سارے معاملات۔ تو یہ شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج جو ہے وہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے انداز بدل گئے، اس کے طریقے جو ہیں وہ بدل گئے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اسی طرح سے کریٹیکل، آج بھی اسی طرح سے کریٹیکل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں
حضرत उमान उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा नुकसानदेह हो। यानी औरत सबसे बड़ा फितना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में रहेगा। इसी तरह से बुखारी और मसनद अहमद की एक और रिवायत है। हजरत ये सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं कि मुझसे सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने पूछा कि क्या तूने शादी की है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया, शादी करो, क्योंकि इस उम्मत के बेहतरीन शख्स यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत सारी बीवियां थी। तो शादी करने की तरगीब जो है वो भी हमें मिलती है कि इससे उन इन ख्वाहिशात, इस तरह के ख्वाहिशात या इस तरह के जो फितने हैं उनसे बचने में या उनसे उनके ऊपर काबू पाने में बहुत मदद मिलती है। अफसोस के साथ कि आज इस मैटर में भी किस तरह से मुसलमान जो है दूसरी कौमतें छोड़ दे, मुसलमान जो है वो किस तरह से पड़े हुए हैं कि 30-30 साल, 35-35 साल उम्र हो जाती है और शादी जो है उसका नाम नहीं लेते। कोई सेट होना है पहले और ये करना है वो करना है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन बातों की भी तौफीक दे कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल भी कर सकें। फिर इसी तरह से मुस्लिम और अबू दाऊद की एक और रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सामान जिंदगी है और दुनिया का बेहतरीन सामान वो नेक बीवी है कि जब वो उस मर्द की तरफ देखे, अपने शोहर की तरफ देखे, तो वो उसे खुश कर दे। अगर उसे हुक्म दे, वो शोहर अगर उसे हुक्म दे तो वो उसकी इताअत बजा लाए। और अगर वो उससे गायब हो जाए, यानी शोहर उससे दूर हो जाए, बाहर कहीं चला गया घर से, तो उस ऐसी सूरत में वो अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करती है। ना कि वो सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, बल्कि उसके माल और उसकी औलाद और उसके दीगर जो वसाइल हैं उनकी भी हिफाजत करती है। ऐसी औरत जो है दुनिया की जिंदगी का बेहतरीन सामान है, वो नेक बीवी जिसमें ये ख्वाहिशात हों। तो ये हुब्ब शहवात में सबसे पहला जो है अल्लाह ताला ने तज़किरा किया निसा, औरतों के बारे में, शहवानी नफसानी ख्वाहिशात के बारे में। तो ये बहुत क्रिटिकल एक सब्जेक्ट है। तो ये भी दुनिया की जिंदगी में दर हकीकत मुज़य्यन किया है अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर। वल बनीना, और इसी तरह से बेटे, औलाद, और औलाद में खासकर बेटे जो हैं, इनकी कसरत या इनके ऊपर एक बड़ा घुमंड और गुरूर जो है, ये भी दुनिया की एक कह लें कि एक मुज़य्यन करदा एक चीज है, या दुनिया की जीनतों में से एक जीनत है। बेटे भी अगर देखें, अगर हुब्ब शहवात के पराये में अगर देखें, तो औरत से मोहब्बत जो है वो भी अगर अल्लाह ताला की तय करदा हदूद के अंदर हो तो ये बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन औरत के साथ मर्द, औरत और मर्द का आपस में ताल्लुक जो है एक बेहतरीन ताल्लुक है, अगर वो अल्लाह की हदूद और क़ुयूद के अंदर हो। इसी तरह से बेटे जो हैं वो भी अगर तो उनकी तादाद में इजाफा जो है वो इस वजह से कोई करे, या इस तरह इस वजह से उसकी ख्वाहिश हो, शदीद ख्वाहिश हो कि मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा होगा या मुसलमानों के लश्कर में इजाफा होगा, तो उसमें तो ठीक है। लेकिन बेटियों की ख्वाहिश इसलिए रखना कि दुनिया में उनको एक जाननशीन मिल जाएगा, दुनिया में उनको उनका वारस मिल जाएगा, और दुनिया में उनके साथ ये मैटर होगा। या इसके अलावा बेटों की तादाद के ऊपर फिर फख्र और गरूर भी किया जाता है। औलाद में गो के बेटियां और बेटे दोनों बराबर हैं, लेकिन बेटों की तादाद या बेटों की मौजूदगी में एक फख्र जो है या एक गरूर जो है, ये भी दर हकीकत दुनिया की जीनत है। इससे भी हमें अपने आप को थोड़ा सा महफूज रखना चाहिए। वल कनातीर अल मुकंतरती, और खजानों से, और उन खजानों से जो जमा करता है, मिन ज़हाबी वल फिज़्ज़ाती, सोने और चांदी के, यानी सोने और चांदी के खजाने इकट्ठे करना, ये भी दुनिया की मुज़य्यन करदा चीज़ों में से एक चीज़ है। अल्लाह ताला ने जो दौलत अता की, कुछ को तो बेशुमार दौलत देता है और कुछ को थोड़ा सा महदूद करता है, जिस तरह से वो चाहता है, जिसके साथ वो मामला करता है। तो अब जो जिनके पास तो दौलत मिल गई, उनके खजाने सोने और चांदी जो है, ये तो मिसाल के तौर पर है। आजकल अगर देखें तो बिलियन और ट्रिलियन और बल्कि उससे भी बड़े के कुछ लोग जो हैं मौजूद हैं, किस तरह से उन्होंने खजाने दबाए हुए हैं। तो लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में या दूसरों को वो खर्च करने, नॉन मुस्लिम तो छोड़ दे, मुसलमानों में एक बड़ी तादाद जो है वो अरब पति और खरब पति और के पता नहीं कितने कितने पति हैं, वो किस तरह से उन्होंने सोना चांदी और इस तरह से एसेट्स जो हैं वो जमा किए हैं। सोना चांदी जैसा कि तस्करा वो मिसाल के तौर पर है कि प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, कंपनीज बनी हुई हैं, और बड़े बड़े उनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट्स है बड़ी बड़ी,
किस किस तरह से उनके पास वो खजाने हैं। ये सब दुनिया की चका चौंध जो रौनकें हैं वो हैं। लेकिन जो इन खजानों को इस्तेमाल करके आखिरत के लिए कमाई करेगा, आगे जाकर आएगा, तो दर हकीकत वही है जो खुब शहावात से जिसने अपने आप को महफूज रखा, या अपने अपने मामलात को कंट्रोल में रखा। वल खैल मुसव्वमाती, और घोड़ों घोड़ों से निशानजदा। निशानजदा घोड़े, निशानजदा घोड़े से मुराद आला नस्ल के अरबी घोड़े जो हैं, जो कि अपनी खसूसियत, अपनी ताकत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा मशहूर, और अपनी कीमत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा महंगे। तो खैल खैल मुसव्वमा, निशानददा घोड़े जो हैं, जैसा कि मसनद अहमद और निसाई में एक रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम में भी इसका तज़किरा है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अरबी घोड़े को सुबह के वक्त दो दुआएं करने की इजाज़त दी जाती है। हर अरबी घोड़े को सुबह के वक्त दो दुआएं करने की इजाजत दी जाती है। तो वो जब उसको इजाजत दी जाती है तो वो ये दुआ करता है, या तो वो ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, तूने इंसानों में से जिसे मेरा मालिक बनाया है, तू मुझे उसके सबसे पसंदीदा अहल और माल में से बना दे। या वो इस तरह से दुआ करता है कि मुझे उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा अहल और माल बना दे। यानी ये जो घोड़े हैं, वो उनको सुबह दो दुआएं करने की इजाजत अल्लाह ताला से मिलती है। तो वो फिर दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मेरा जो मालिक है उसके लिए, उसके दिल में मेरी मोहब्बत इतनी डाल दे कि मैं उसको इसी तरह से पसंद हो जाऊं जिस तरह से वो अपने अहल को और अपने माल को पसंद करता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि घोड़ों की मोहब्बत जो है वो किस कदर मतलब सराय थी। और घोड़ा जो है वो पहले जमानों में तो एक बहुत बड़ा और कीमती एसेट था। जिसके पास घोड़ा होता था, गोया कि वो उस इलाके का सरदार, या उस इलाके का वीआईपी, या उस इलाके का अमीर करीब कबीर बंदे जो हैं वो होते थे। घोड़ा जो है वो एक निशानी। और फिर आला नस्ल का घोड़ा, फिर महंगे महंगा घोड़ा। जैसा कि आज के दौर में अगर हम देखें तो घोड़े का नेमुल बदल जो है, या मुतबादल जो है, वो गाड़ियां जो है, कि गाड़ियां आला से आला गाड़ियां, एक से एक बढ़कर गाड़ी जो है उसको हासिल करने की कोशिश। और गैराज में देखें तो गाड़ियों की लाइंस लगी हुई हैं, और एक से एक महंगी के से महंगी गाड़ी जो है। और फिर गाड़ियों तक नहीं रखते, फिर अपने प्राइवेट जेट प्लेन जो है वो भी ले रहे हैं, और फिर पता नहीं किस किस तरह से जो चलता है। तो इस तरह के शौक पालना, ये भी दुनिया की रोनाइयां और दुनिया की चकाचौंध जो रोशनियां हैं उनमें से एक है। लिहाजा इनमें भी हमें थोड़ा सा, अब ऐसा घोड़े रखना या सवारी रखना, इसमें तो कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं। ये ज़रूरत की चीज़ भी है, लेकिन इसको अपनी हदों से तजावज़ करके उसके साथ मोहब्बत कर लेना, वो जो है वो हमें उस आजमाइश की नाकामी का बायस होता है। उस आजमाइश के ऊपर हम पूरा नहीं उतर सकते फिर। वल वल अनआम वल हर्सी, और इसी तरह से चौपाई और खेती। यानी वो घोड़े जो हैं वो इस जिस तरह से घोड़े एसेट हैं, उसी तरह से इनाम, दीगर चौपाई, दीगर माल मवेशी और हर्स खेती बाड़ी, या दीगर दीगर जो एसेट्स हैं। आज के दौर में भी वो मतलब अजनास भी हैं, मतलब तिजारत का माल भी हो सकता है, कंपनीज भी हैं, दीगर असासे भी, जैसा कि अभी तذکرہ हो चुका। तो ये सारा कुछ है जो दुनिया की रौनकें हैं। ज़ालिका मता उल हयात दुनिया, देखो ये तो दुनिया की जिंदगी का एक आर्जी सामान है। मता जो है ये बार बार हमारे सामने आएगा कुरान मजीद की आयत में। तो मता से मुराद है आर्जी बरतने की चीजें। आर्जी तौर पर जिसको कोई चीज मिलती है तो वो मता है। तो ये सारा कुछ तो दुनिया की जिंदगी का एक आर्जी सा सामान है, जिससे तुम दुनिया आखिरत के लिए कमाई कर सकते हो। जैसा कि मिसाल जो है वो अक्सर जो है वो मिसाल पेश करते हैं हम, कि जिस तरह से मजदूर को औजार दिए जाते हैं, कुछ टूल्स दिए जाते हैं कि ये टूल्स हैं, इनके जरिए से तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें उजरत दूंगा। वो काम मुकम्मल होने के बाद उन टूल्स को वो वहीं पर छोड़कर वो अपनी जो कमाई है, या अपनी जो उजरत है, अपना जो कसब है, वो वहां से लेकर अपनी सैलरी वहां से लेकर अपने घर को चला जाता है। इसी तरह से दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारा सामान जो है वो आर्थिक तौर पर इंसान को दिया है कि ये लो, ये चीजें हैं, इन चीजों से तुम आखिरत के लिए कमाई करो। जो आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आखिरत में किस तरह की कमाई लेकर फिर वो अपने मुस्तकिल
ठिकाने की तरफ, अपने मुस्तकिल घर की तरफ बढ़ेगा, उसी तरह से उसको उस घर में फिर आसाइश मिलेगी, या उस घर में वहां पर फिर उसको मुशक्कत और सजा मिलेगी। तो दुनिया में ये जो सारा कुछ चीजें हैं, ये आर्जी बरतने की चीजें हैं, लिहाजा उनको तुम इस तरह से इस्तेमाल करो कि जब तुम अपने घरों की तरफ लौटो जो कि आखिरत में तुम्हारे लिए तैयार करता है, तो वहां पर तुम आसानी और आसाइश से रह सको, पूरा आसाइश जिंदगी या बाकी के जो है वो गुजार सको। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, और अल्लाह ताला तो वो है जिसके उसके पास बेहतरीन ठिकाना है। ये दुनिया के ठिकाने जो हैं, ये तो आर्जी ठिकाने हैं। ये दुनिया के, ये माल और दौलत जो है, ये सब कुछ आर्जी है। हुब शहावात जो है, ये तो आजमाइश का जरिया है। असल जो ठिकाना तुम्हारा है, असल जो तुम्हारा घर है, असल जो जगह जहां पर रहने की तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, वो तो अल्लाह के पास है, यानी आखिरत में। उसकी तुम फिक्र करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, या यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। और आखिरत का घर या आखिरत का ठिकाना किस तरह से है? कुल, आप उनसे कह दीजिए, उनब्बिउकुम, क्या मैं खबर दूं तुम्हें, बिखैरिन, बेहतरीन चीज की, मिन जालिकुम, इस सामान से, यानी इस दुनिया के सामान की निस्बत एक बेहतरीन चीज है क्या? आप उनसे कह दीजिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि आप लोगों से कह दीजिए, या यहूद नसारा से कह दीजिए, या मुसलमानों में भी ये बात उनके लिए भी यकीनन बहुत अहम है, कि उनसे कह दीजिए, उनके ऊपर वादे कर दीजिए कि क्या, अल्लाह ताला की तरफ से, कि क्या मैं तुम्हें एक बेहतरीन चीज की खबर दूं जो इन दुनिया की चीजों की निस्बत एक बेहतरीन चीज है। जैसा कि बुखारी की एक रिवायत है, हजरत साहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह, कोड़ा जो है वो जो छांटा सा वो जो होता है, जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह भी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। यानी जन्नत की जो मुख्तसर तरीन और हल्का सा कम से कम जगह जो है, वो भी पूरी कायनात से बेहतरीन जो है, बहुत बहुत बढ़ कर है, बहुत आला और अफजल है। तो उनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हें कि दुनिया के इन रोनाइयों की निस्बत कोई बेहतरीन चीज ना बताऊं। और वो बेहतरीन की चीज क्या है, किसके लिए है? सबसे पहले वो बेहतरीन चीज के हकदार कौन होंगे, वो पहले बता दिया, कि देखो अगर वो बेहतरीन चीज तुम उसको हासिल करना चाहते हो, तो उसके हकदार कौन है? लिल्लज़ीन तक़व इंदा रब्बिहिम, वो लोग हैं जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब के करीब। अल्लज़ीन तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, वो तो मुत्तकी लोग हैं, जो उनके उन उस बेहतरीन चीज के हकदार हैं। और वो इन रब्बिहिम, उनके रब के पास है, उन मुत्तकी लोगों के लिए जन्नातुन, बागात हैं, जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारू खालिदीन फीहा, उनके नीचे नीचे से या उनके बीचों बीच नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे उनमें। नहरें जो बीचों बीच बह रही हैं, एक लैंडस्केप का यहाँ पर अल्लाह ताला खाका जो है वो पेश करता है। जैसे कि कल भी आयत मुतशाबिहात के बारे में हमने देखा कि अल्लाह ताला अपने बहुत सारे राज जो है उनके बारे में जब खबर देता है, तो दुनिया की कुछ जानी मानी चीजों से उसको तशबीह करके या उसके साथ मिसाल के तौर पर पेश करता है, कि ताकि इंसान जो है उसके जहन में कोई धुंधला सा, कोई हल्का फुल्का खाका बन जाए, लेकिन उसकी असल खूबसूरती, उसकी असल कैफियत, उसकी असल मतलब जो हकीकत है, वो तो हम जब उसको देखेंगे अपनी आप आंख से, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबके नसीब में करे कि हम इस जन्नत को अपनी आंखों से देखें, आमीन। तो जब हम उस जन्नत को अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमें उसकी सही जो मुकाम है और सही उसकी जो उसके अंदर जो आसाइशें हैं, तब हमें उसका अंदाजा होगा। दुनिया की जिंदगी में सिर्फ अल्लाह ताला ने एक एक मतलब तसल्ली देने के लिए, या एक खाका तश्कील करने के लिए इंसान के लिए इस तरह की मिसालें जहाँ तذकरा की, तो वो एक बेहतरीन लैंडस्केप होगा जिसमें ग्रीनरी होगी हर तरफ, और उसके बीचों बीच तुम्हारे लिए नहरें जो है वो चल रही होंगी, जैसा कि आजकल भी समुंदर के किनारे पर या दरिया के किनारे या इस तरह के लैंडस्केप को बड़ा बेहतरीन पुरफजा मकाम जो है वो समझा जाता है, ठहरने के लिए, रुकने के लिए, रहने बहने के लिए। अजवाज जो मुतहरा, उसमें पाक बीवियां, पाकीज़ा बीवियां भी होंगी। अजवाज जो है वो जोज की जमा है, यानी जोड़ा, तो मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द वहां पर होंगे, वो भी पाकीज़ा होंगे। और पाकीज़ा यहाँ पर जिस्मानी पाकीज़गी भी है और रूहानी पाकीज़गी भी। ये सब जिस्मानी पाकीज़गी यानी हैज और निफासत और इस तरह के बदबू वगैरह, इस तरह की हर तरह की जो गंदगियां हैं उनसे बिल्कुल वो पाक होंगी। रूहानी एतबार से भी, यानी जज्बात और एहसासात और मोहब्बत करने के मैटर में भी वो दोनों जो हैं वो आपस में बेहतरीन होंगे।
تو وہ جس نے دنیا کی زندگی میں تقوی اختیار کیا ان کو وہاں پر پاک باز اور پاکیزہ جوڑے جو ہیں ان کو وہاں پر بنا دیا جائے گا، یا کو پاکیزہ سپاؤس جو ہے وہ وہاں پر ملیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی وہاں پر حاضر ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضا ان کو ملے گی وہ وہاں پر سب سے بڑھ کر ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتیوں سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کر دوں؟ جنتی کہیں گے اے رب، اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی رضا تم پر نازل کرتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنت کی اتنے بہترین جو لینڈسکیپ اور بہترین وہاں پر آسائشیں جو ہیں، ان سب سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی رضا وہاں پر جب ملے گی تو وہ جنتیوں کے لیے سب سے وہاں پر بہترین جو چیز جو ہے وہ ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندو کو خوب دیکھ رہا ہے، اپنے بندو پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کے سارے معاملات ہوں گے۔ دنیا میں ان خب الشہوات میں کس نے کس طرح سے اس کو فائدہ اٹھایا، کس طرح سے اس نے اس کو کمائی کی، اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے انجام کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جو ہے وہ خوب نوٹ کر رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کی نظروں سے کچھ بھی اوجل نہیں ہے۔ تو یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں، کل یا اگلے سبق میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو آج کے سبق میں ہمارے سمجھنے کی، سیکھنے کی، خاص کر دنیا کی زندگی جو ہے یا دنیا کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اپنا اپنا تکیہ جو ہے وہ تھوڑا محدود کرنا، کہ ہم ان سے آخرت کمائیں میکسیمم انداز ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کے مطابق اپنا اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب کے دور میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل عطا کیے ہیں، جو رزق عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رزق سے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔